Okay, so in today's session, what we are going to do is basically HCF and LCM. We kind of covered in the previous class about factors, number of factors, co-prime numbers, divisibility rules, properties of numbers. So we have covered almost all that. In today's class, we'll be essentially covering your HCF, LCM, and along with that, we'll be also covering your successive division. So this is the agenda for today. Now, HCF and LCM is something that we have studied in our school days also, and at an early stage also, right? So, but what we are going to do today is slightly more understanding that we had in the schooling, and we'll also look at the kind of questions that we may come across. Some very good quality examples are given in this book. So if you are able to solve these examples, we will be pretty much able to cover all different types of questions that are that can be asked. So let us start with understanding of first term, our HCF. Now we know the expansion of HCF, and that is highest common factor. Now let us try to just understand what does this really mean, because HCF is highest common factor is just an expansion of the term HCF. We would really want to understand what it really means. What is the real essence of? क्या हुआ, नहीं दिख रहा है? इधर उधर हो जा, इधर आ जा. कोई बंद कर दे, कोई बंद कर दे. क्या हो गया? अच्छा, ये लिखने के लिए चाहिए था क्या? लिखने के लिए चाहिए होती क्या? बंद करने से दिखाई नहीं दे रहा. हाँ, वो पिच अब ठीक है. ऐसा, हाँ इधर आ जाओ. थोड़ी ब्राइट है, बट उसकी पेट जगह वो वहीं बैठती है. ओके चलो, लेट अस. ये हमारा मतलब एक्सपेंशन है. हम टर्म बाय टर्म समझते हैं. एक तो ये एक्सपेंशन हमें पता है, एंड हमें निकालना भी आता है एचसीएफ कैसे निकालते हैं. फॉर एग्जांपल, हमें 6 और 8 का एचसीएफ निकालना है. तो स्कूल में हम दो मेथड्स पढ़ते थे. हम पहले 6 को फैक्टराइज करते थे. 2 3 6, 3 1 3. सो 6 कैन बी फैक्टराइज एज 2 into 3. ऐसे ही हम 8 का फैक्टर्स निकालते थे. 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2. और हम 8 को लिखते थे 2 into 2 into 2, यही लिखते थे. और जो इनमें कॉमन होता था हम इसको एचसीएफ बोल देते थे. एक मेथड तो यही था. दूसरा मेथड डिवीजन मेथड होता था, जहां पे वी विल टेक द लार्जर नंबर एंड इट डिवाइड बाय स्मॉलर नंबर. सो लेट अस से वी से 6 1 6, रिमाइंडर इज 2. दिस रिमाइंडर acts as a divisor to the preceding divisor, which is 6. So 2 3 6, remainder is 0. So the last divisor is known as HCF. Now these are two methods. अगर इसमें 3 टर्म्स होती मान लेते हैं, तो हम क्या करते? पहले किसी भी 2 टर्म का, जैसे 6 8 और 10 होता, तो 6 और 8 का HCF निकाल लिया. फिर जो आया 2 और 10 का फिर HCF निकाल लिया. इस तरीके से हम 3 को हम इकट्ठे कर सकते थे. और अगर हमको इस वाले फैक्टराइजेशन मेथड से करना होता तो हम यहाँ पे 10 लिखते, और 10 को हम लिखते 2 into 5. तो इन तीनों में जो कॉमन होता वो मेरा HCF हो जाता. तो 2 टर्म है या 3 टर्म है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है. वी कुड हैव यूज्ड बोथ द मेथड्स, डिवीजन मेथड एंड फैक्टराइजेशन मेथड, टू सॉल्व अवर question. Now that is what we have been pretty much doing in our schools. That's how we have learned. So but what I'm trying to ensure is to help you understand what is the real meaning of HCF, and so that once we understand, we'll be able to handle the questions better. What does it mean? Let us just take an example of 6 and 8. Let's just get hold of the first term, factor. We did sorry, in the previous class we did what is the meaning of factor. Factor meant a number which can divide the given number completely. So the factors of 6 happen to be 1 2 3 and 6. So these are the 4 numbers which can divide 6 completely, and therefore this is known as factor. So what are the factors of 8? So the numbers 1 to 4 and 8. Now these happen to be the number which can divide 8 completely. Now, so this becomes a factor. What are we searching for? We are searching for common factor. What does it mean? It means factors which are present in both the values. That means जो 6 में भी present है, 8 में भी present है, यानी common factor which is 1 and 2. However, whenever we are asking for highest common factor, that means we are searching for the value which is higher of the given values, which is 2. So this is the essence of HCF. इसका मतलब है जो भी संख्याएं हमें दी गई हैं उनके फैक्टर्स लेने हैं हमें. उन फैक्टर्स में जो कॉमन फैक्टर है वो लेना है हमें, और उनमें से जो सबसे बड़ा फैक्टर है हमें वो लेना है. दैट इज हाउ HCF इज अंडरस्टूड.
In another words, if you really want to understand the essence of HCF, it is that highest number which can divide the given number completely. So that is the basic definition of HCF. For example, let us say I have 6 and I have 8. HCF वो सबसे बड़ी संख्या है जो दोनों नंबरों को पूरी तरीके से डिवाइड कर सकती है. That is the basic meaning of HCF. It is that highest number which can divide the given numbers completely, because 6 is divisible by 1, 2 and 3 and 6. 8 is divisible by 1, 2, 4 and 8. But we are looking for the number which can divide both the numbers. Now both the number is divisible by 1 and 2, 1 and 2. But which number are we looking at? Highest number. We are looking at the highest number, which happens to be 2. So this is the basic definition of HCF. So what does HCF mean? क्या मतलब हुआ? That highest number which can divide the given numbers completely. समझ में आ रहा है? HCF वो सबसे बड़ी संख्या है जो गिवन नंबर्स को पूरी तरीके से डिवाइड कर देगी. ये हमारी एसेंस है डेफिनेशन HCF की. क्लियर है? हम इसको देखेंगे, इसको हम यूज कैसे करते हैं, लेकिन ये मेरी डेफिनेशन है, ये मेरी समझ होनी चाहिए HCF की. यहां तक क्लियर है? हमें समझ में आती है. इसके बाद में LCM समझते हैं और फिर हम दोनों को और डिटेल में समझेंगे. अगर हम यहां पे एक टर्म को समझें, LCM once again we know by expansion, by our education, कि इसको क्या बोलते हैं हम? We say it is a least common multiple. यार मेरी राइटिंग को क्या हो रहा है यार? इतनी गंदी तो नहीं थी. I mean, that's the expansion we all know, right? And we also know the process of studying LCM in our school days. So what is the process of studying 6 and 8? You take the long division method. You start dividing by the smallest prime number. 2 3s are 6, 2 4s are 8. Then you continue. 2 से ये since 3 is not being divided, हम 3 को नीचे ले आते हैं. 2 2s are 4. अभी भी नहीं divide हो रहा. 3 को नीचे ले आएंगे. 2 1s are 2. And then once again we'll bring 3 down and we will continue this process till the time we get 1 1. और अगर 3 डिजिट होता तो सब में 1 1 आना चाहिए था. So my LCM happens to be 2 into 2 into 2 into 3, which is 24. Now this is the process that we have actually studied in school, and that is the meaning of LCM, least common multiple. Now what is the real essence of LCM? That is what we are going to study now. Let us say we are taking these numbers 6 and 8 and we are trying to figure out my LCM. Now the first term that we need to study is multiple. So what are multiples? Multiples means a number is given and you keep on multiplying that number by different natural numbers. So when 6 is being multiplied by 1, you get 6. 6 is being multiplied by 2, you get 12, 3, 18, 24, 30, 36, 42, 48. कहां तक जाएगा ये? कहां तक जा सकता है multiple? It can go to infinity. Then if you look at 8, let's look at multiple of it. 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56. कहां तक जाएगा ये? Infinite. Now this is what we call as a multiple. ये क्या है? Multiple. What multiples are we searching for? Common multiples. Common means this multiple is available in both the 6 multiples and 8 multiples. So if you look at 6 multiple and 8 multiple, you happen to see there is 24, there is 48. You may find somewhere 72. You may find somewhere 96. समझ में आ रहा है? 24, 48 इसी के मल्टीपल हो जाएंगे. 72, 96. समझ में आ रहा है? ये कॉमन मल्टीपल. कितने कॉमन मल्टीपल हैं? इनफाइनाइट. तो ये मेरा क्या है? कॉमन मल्टीपल, इनफाइनाइट. हमें कौन सा चाहिए इसमें से? लीस्ट. तो लीस्ट कौन सी वैल्यू बनेगी? 24. ये मेरा LCM होता है. इसका मतलब है मेरे पास जो संख्याएं दी गई हैं उनके मल्टीपल्स लेने हैं. उन मल्टीपल्स में से जो कॉमन मल्टीपल है वो लेने हैं. उन कॉमन मल्टीपल में से जो सबसे छोटा है वो लेना है. ये बेसिक डेफिनेशन है LCM की. हमारी रियल डेफिनेशन हमें कैसे समझनी है? रियल डेफिनेशन जैसे मैंने HCF की बताई थी वैसे ही LCM की डेफिनेशन ये बनती है. इट इज द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय द गिवन नंबर्स. LCM की डेफिनेशन है. ये वो सबसे छोटी संख्या है जो गिवन संख्याओं से डिवाइड हो रही है. LCM का मतलब है दिस इज दैट स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय
6 and 8 in this case. Why I'm saying smallest number? Because 24 is divisible by 6 and 8, but it is not the only number. You may have 48 which is divisible by 6 and 8. You have 72 which is divisible by 6. It is the least number which is divisible by 6 and 8. So the basic definition of LCM is it is the least number divisible by given numbers. जो numbers जिसका हमने LCM निकाला है उसका मतलब है उनमें से जो सबसे छोटा नंबर है वो है. यहां तक बात समझ में आ रही है अभी हमें? अब now we are trying to understand the interrelationship between these two numbers. Let us just look at those. Now we are using the word least. हमने 6 और 8 का LCM लिया. We are using the word least. Still my answer is greater than the greater of the given two values. जो दोनों संख्याएं दी हैं उसमें जो बड़ी वाली वैल्यू है मेरा आंसर उससे भी बड़ा आ रहा है. और हम शब्द क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? लीस्ट. ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि लीस्ट तो है, छोटा तो है, लेकिन किसका? मल्टीप्लाई का, फैक्टर का नहीं, मल्टीपल का. सबसे छोटा है लेकिन किसका? मल्टीप्लाई. जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ा हो जाएगा. उस बड़े वाले में से हमें छोटी चीज निकालनी है. इसीलिए द LCM is always greater than or equal to the given two values. जो दोनों संख्याएं दी हैं उनमें से जो बड़ी वाली वैल्यू है LCM या तो उसकी बड़ी वैल्यू के बराबर होगा या उससे ज्यादा होगा. जैसे 24 ज्यादा है. HCF हम शब्द क्या इस्तेमाल करते हैं? हाईएस्ट. लेकिन आंसर क्या आता है? छोटा आता है. तो हाईएस्ट वर्ड बोल रहे हैं और आंसर छोटा आ रहा है. क्यों आ रहा है? हाईएस्ट टुकड़ा है. टुकड़ा कितना भी बड़ा हो जाए खुद से तो बड़ा नहीं हो सकता. पाकिस्तान कितना भी जोर मार ले इंडिया से बड़ा हो जाएगा? टुकड़ा ही तो है ना? तो नहीं होएगा. इस पे कोई नहीं बोलेगा मेरे को कुछ. थ्रेट्स आएंगी वहां से आएंगी, यहां से नहीं आएंगी. टेंशन ना लो इसमें तो. सो पॉइंट इज ये क्या कर रही है? हाँ चल. तुम ना यार, मेरा इकलौता प्रोजेक्टर है, इसको और तोड़ोगे. ओके नाउ so although it is a highest, we are using the word highest, but it is highest tukda. So therefore no matter how large that tukda is, it will still be smaller than or equal to the smaller of the given values. इसका मतलब क्या है कि इन दोनों में जो छोटी संख्या है, जो HCF है, वो उससे भी छोटा होगा और बेस्ट केस सिनेरियो में उसके बराबर हो सकता है. उसी तरीके से जो LCM है वो बड़े वाले नंबर से बड़ा होगा और वर्स्ट के सिनेरियो में उसके बराबर हो सकता है. अब ये बराबर कब होगा वो सिनेरियो हम चेक करेंगे अभी. बट पॉइंट इज यू नीड टू जस्ट अंडरस्टैंड दिस. डोंट जस्ट गो बाय द वर्ड हाईएस्ट एंड लीस्ट इन द क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड वेदर द क्वेश्चन बिलोंग्स टू HCF और LCM. ये ध्यान रखना है आप लोग, क्योंकि ये कंफ्यूजन होती है. हम बोलते हैं हाईएस्ट है और सोचते हैं यार वो तो बड़ा आना चाहिए, बट वो छोटा आता है. इसका रीजन और लॉजिक ये. यह बात समझ में आती है हमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है. नाउ व्हेन इज दिस condition of equality going to happen? Now if you want to take, let us say, a number like 4 and number like 12, let's say. Now we want to find HCF of these two numbers and LCM of these two numbers. Now if you observe these two numbers, the smaller number happens to be the factor of larger number. So whenever a number, larger number, will act as a multiple of smaller number. अगर छोटे वाला नंबर बड़े वाले का फैक्टर है तो लॉजिकली बड़े वाले नंबर छोटे वाले का मल्टीपल होगा. In such a scenario, the smaller number will always be the HCF and the larger number will always be the LCM. सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. तभी ये इक्वलिटी वाला जो केस आता है कब आता है? जब एक नंबर दूसरे नंबर का क्या हो? फैक्टर हो. उस केस में ये पंगा नहीं होता. छोटे वाला HCF, बड़े वाला LCM, क्वेश्चन सॉल्व. Let us say we have a scenario where these two numbers are co-prime to each other. कल किया था co-prime. क्योंकि co-prime है तो कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं. कॉमन फैक्टर है नहीं तो LCM भी HCF भी 1 ही होगा. So HCF will always be 1 and LCM will always be the product of the given numbers. को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है. ये बात समझ में आती है मुझको? You don't have to solve it. Since it is HCF LCM, we can do this. ये बात समझ में आती है? No. इसके अलावा there exists a relationship between HCF and LCM as 4 or 12. Now 4 is factor of 12, right? I mean 4 can divide 12 completely. So 12 will act as a multiple of 4. In such a scenario, the smaller number is always the HCF and the larger number is always the LCM. You don't have to solve it.
That's what I'm saying. Clear hai? Now, there exists a relationship between HCF, LCM and the given number, and the relation is the product of the two numbers can be given as HCF into LCM. Now please be cautious. Even I think अब मैं book में correction हो गई है. Large number of books give you this method that product of numbers is equal to HCF into LCM, which is not true always. This rule exists for two numbers only. Of course, if the number may be co-prime, there can be a situation where product of three numbers is equal to product of their HCF and LCM, but it is not necessarily true. What is necessarily true, and this is pretty much wrong in majority of the books that you will find. What is true is if it's a two-digit number, two numbers, and we are taking HCF of two numbers and LCM of two numbers, then the product of those two numbers is equal to HCF into LCM. Why it is happening, I'm going to explain you little later, but this is the rule. So if you're given two numbers and one HCF, you can find out LCM. एक number दिया है, एक HCF, एक LCM दिया, and each out of these four parameters, if any one thing is three things are given, you can always find out the fourth thing. That is the standard result that you are expected to do. Should not be a problem. You can find out HCF, LCM now. Okay, let me give you a question. Okay, let's say 2 and 3 का HCF तो तुम क्या ही निकालोगे, बिंदी लगा देता हूं यहां. ठीक है, 0.2 and 0.03 का HCF और LCM चाहिए अपने को. ठीक था ना भाई, मैंने कहा क्या ही निकालोगे, तुम तो अच्छे बच्चे, स्मार्ट बच्चे हो, तो मैं थोड़ा बदल देता हूं मैं. क्या पता तेरे को? चलिए, मुझे लग नहीं रहा, जल्दी हो. पॉइंट्स में तो आंसर. Okay, what you have to what now okay, listen up now. अगर हमारे पास डेसिमल में कोई डेटा है तो हम पहले इसको इंटीजर बना लेते हैं. इसको इंटीजर बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको भी 10 से करना पड़ेगा, लेकिन ये तो कन्वर्ट नहीं होगा. फिर क्या करें? 100 से. वेरी गुड. सो इफ यू मल्टीप्लाई दिस वैल्यू बाय 100 एंड दिस वैल्यू बाय 100, वी कैन कन्वर्ट बोथ द डेटा इनटू इंटीग्रल वैल्यू. तो ये बनेगा 20 और ये बनेगा 3. अब 20 और 3 का HCF आपको निकालना आता है. क्यों? क्योंकि दोनों को प्राइम है. HCF क्या बनेगा? 1. ऐसे LCM इन दोनों का क्या बनेगा? 60. इसमें तो कोई डाउट नहीं है. 20. बट ये 1 तब आया जब मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया था. तो आंसर लिखने से पहले 100 से 0.1 बेटा, और इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट. तो पायल, हाँ ठीक, गलत है तुम्हारा, और BCM 19 सही है तुम्हारा. कौन नाम, क्या नाम है इसका? यश. यार लिख दिया अगर यश. रुक जा, मैं देखता हूं यहाँ पे कौन है, कहाँ गया, रुक जा. क्या नाम है? 19 BCM यश ना. सब लोग मिस कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे नाम बताओ. 1356. बस 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 बस, ठीक है, ओके. हाँ हो गया, कर दिया मैंने चेंज. ठीक है, ओके. नाउ हाँ भी कर रहा हूँ. नहीं कोई दिक्कत नहीं है. अभी दिक्कत आएगी जब मैं दूंगा फ्रैक्शन में. रुक जा, अभी देख. अब मान लेते हैं इसके मनोकामना पूरी करी जाए. मान लेते हैं 3/4 और 2/3. कारण इसलिए 3/4 तो ये डेसिमल में कन्वर्ट कर लोगे आप लोग. 2/3 का क्या करोगे? 0.666 आएगा. हाँ इसीलिए तो कर रहे हैं ना आप.
So the question here is ये मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि आपको HCF लेना है इसका। हाँ मैं अभी आता हूँ। ओके नाउ ये 3/4 और 2/3 का हमें HCF और LCM लेना है। मैंने चूंकि आपको डेसिमल पढ़ाया है तो दिमाग चल सकता है कि आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 3/4 तो डेसिमल में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन 2/3 को डेसिमल में नहीं कर पाएंगे क्योंकि रिकरिंग डेसिमल आएगा, इसलिए फिर ये मेथड अच्छा नहीं होगा हमारे लिए, इसको हम अप्रोच नहीं करेंगे। ये मैंने सबको कराया हुआ है जब मैं आपको रेसिस पढ़ा रहा था। तो HCF निकालने के लिए HCF ऑफ द न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय LCM ऑफ द डिनोमिनेटर चाहिए। तो इसका HCF बनेगा 1 और LCM बनेगा 12, जो आपने आंसर निकाला। बिल्कुल सही पायल एंड यश। उसी तरीके से अगर मुझे इसका LCM लेना होता तो मैं न्यूमरेटर का तो LCM ले लेता और डिनोमिनेटर का मैं HCF, यानी जो वैल्यू निकालनी है न्यूमरेटर का वो निकाल दो, जो बच गया वो डिनोमिनेटर में निकाल दो। LCM बनेगा 6, HCF बनेगा 1, आंसर आ जाएगा 6 एंड दैट इज द आंसर। एब्सोल्युटली राइट। पल्ले पड़ रही है कहानी यहां तक? नहीं क्या? अच्छा सर सुन, टेंशन मत। देख फ्रैक्शन का HCF चाहिए अपने को, तो ऊपर फ्रैक्शन वाला एक कुछ ऊपर है कुछ नीचे, जो ऊपर वाले जितने भी दिख रहे हैं ना उसका HCF ले ले, और बच गया नीचे वाला, तो एक तो नीचे बच गया और बच क्या गया, दो ही चीजें होती है LCM HCF। तूने HCF ने निकाल दिया, बचे हुए का क्या करेगी LCM, ऊपर नीचे लिख दे, आंसर खत्म। ऐसे ही अगर LCM निकालना है तो ऊपर वाले का क्या निकालेगी? नहीं 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 नहीं, हाँ सीधा सीधा LCM निकालना है तो ऊपर वाले का LCM, जो बच गया वो नीचे गया। अगर HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF, बच गया वो नीचे गया, काम खत्म। आगे बात समझ में? हाँ कर लो। तो ये हमारा फ्रैक्शन और डेसिमल का HCF और LCM निकालने को आ सकता है। यहां तक बात समझ में आती है? वो अगला चैप्टर है वो, इसमें कहाँ है? हाँ पावर की पावर है यार, इसका ना दिमाग अटक गया है पावर की पावर में। अब यार 3 की पावर, अब 3 की पावर 8 तो मैं नहीं सिखाने वाला यार। फिर क्यों क्यों दुखी हो रहा है? हाँ जी ठीक है, समझ में आया बेटा। नाउ अब HCF LCM निकालने का एक और तरीका होता है। ये दो तरीके जो हमने स्कूल में करे थे, एक और तरीका होता है। वो क्या तरीका होता है मैं समझाता हूँ, और क्यों सिखा रहा हूँ वो भी एक इंपॉर्टेंट बात है। हमने 6 और 8 का LCM निकाला, हमें फैक्टराइज किया 2 × 3, 8 को अपन लिख सकते हैं 2³ इसको कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था प्राइम नंबर्स की पावर हम लिख देते तो इसकी पावर 1। अगर हमने किसी भी नंबर को कैनोनिकल फॉर्म में लिख दिया और अब मुझे HCF लेना है मान लो, तो मैं क्या करूंगा, जितने भी प्राइम नंबर्स दिख रहे हैं वो लिख लो पहले, 2 दिख रहा है और 3। ये बात समझ में आती? अब HCF जो होता है वो छोटी वैल्यू आएगी या बड़ी वैल्यू आएगी? इसलिए आप सबसे लोएस्ट पावर ढूंढिए। 2 की लोएस्ट पावर क्या है? 1। और 3 की लोएस्ट पावर क्या है? क्योंकि यहां 3 दिख नहीं रहा तो 1 होता है और एनीथिंग टू द पावर ऑफ 1 लेते हैं। यानी जो प्राइम कहीं पे मिसिंग है इसका मतलब है वो प्राइम की पावर 0 अपन लिख सकते हैं। तो यहां 3 की लोएस्ट पावर 0, 2 की लोएस्ट पावर, आंसर क्या आ गया? तो यही निकाला था अपन ने। अगर हमें LCM लेना है, अब LCM बड़ा होता है, 2 की सबसे बड़ी पावर क्या है और 3 की, आंसर क्या आ गया? समझ में आ रहा है क्या गया? एग्जाम्पल के तौर पे फाइंड HCF ऑफ A³ B² C एंड A²C³ मान लो अपने को क्वेश्चन आ गया, हमें क्या निकालना है? HCF। A B C आर बेसिक प्राइम्स। तो आप लिखेंगे A B और C। लिखा। A की लोएस्ट पावर क्या है? 2। B की लोएस्ट पावर क्या है? 0, क्योंकि यहां है यहां नहीं है तो आप इसको B की पावर 0 मान सकते हैं। और C की लोएस्ट पावर क्या है? यहाँ पे 3 और यहाँ 1। इसका जो HCF बनेगा बनेगा A² C।
अगर इसका एलसीएम चाहिए होता, मान लो अपने को ए क्यूब बी स्क्वायर सी कॉमा, अब अपन ए बी सी लिख लेते। ए की हाईएस्ट पावर क्या है 3, बी की हाईएस्ट पावर क्या है 2 और सी की हाईएस्ट पावर क्या है, ये इसका एलसीएम बनेगा। इसलिए ये सिखाया, ये समझाया, ठीक है। मान लेते हैं वेरिएबल्स का एचसीएफ एलसीएम निकालना पड़े तो हमें इस तरीके से निकालना पड़ेगा। एजम्पशन ये कि नीचे ए बी सी या जो भी वैल्यूज है प्राइम है ना। भाई वो गलती से वो बी की पावर 0 लिख रहा था मैं, रुक जा, कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है क्या था यहाँ पे, क्या लिखा था मैंने 3 था ना। कुछ नहीं लिखने का मतलब बी की पावर 0 लिख सकते हैं अपन, क्योंकि इसमें बी नहीं है, इसमें है, तो उसको जो जहां पे नहीं है वहां पे उसको आप लिख के पावर 0 कर दीजिए, बिकॉज एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 इज। आ रही बात समझ में सभी को? ठीक, ओके, यहां तक हमें समझ में आता है एचसीएफ एलसीएम। अच्छा, तो हमने एचसीएफ निकाल लिया, एलसीएम निकाल लिया, दोनों में रिलेशन देख लिया, फ्रैक्शन निकाल लिया, डेसिमल निकाल लिया, वेरिएबल का एचसीएफ एलसीएम निकाल लिया, शॉर्टकट्स देख लिए। ओके, चलो अब इसमें कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर हम कैट की बात करें तो हमारे लिए क्या क्वेश्चंस आते हैं, एप्लीकेशन बेस्ड, यानी यूसेज ऑफ द क्वेश्चन। तो मान लेते हैं मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, I have 3 ropes of size 10 meters, 15 meters and 50 meters. I need to cut these ropes such that the length of each rope is equal. I do not waste any rope, and the length of the rope that is cut should be as large as possible. How many pieces of such ropes can I get? Now this was a question in exam, but of course उसमें cake का इस्तेमाल किया था उसने. The word was, the thing was cake, and the distribution was fractional distribution. To simplify the concept, explain the concept, I have taken this question. So I have 3 ropes of size 10 meters, 15 minutes and 50 meters, and I need to cut these ropes such that the length of each rope is equal. I do not want to waste any rope, and the length of the rope that is cut should be as large as possible. Question, full stop. How many pieces of such ropes can I get? Now this is the question. First you need to understand ये question किस चीज का है, LCM या HCF? जहां पर भी ये शब्द आ जाए कट, नथिंग शुड बी वेस्टेड। कट का मतलब डिवीजन होता है, वेस्टेज का मतलब रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, यानी कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, एंड लार्जेस्ट पॉसिबल टुकड़ा चाहिए, यानी जो डिवाइजर है वो सबसे बड़ा होना चाहिए। तो समझ में आ रहा है? यू हैव टू लुक फॉर दीज हिंट्स। अब मेरे पास 3 रस्सियां हैं और मुझे क्या करना है, तीनों रस्सियों को काटना है, इसका मतलब डिवाइड करना है। 3 रस्सियां कौन कौन सी है मेरे पास, 10 मीटर, 15 मीटर और 50 मीटर। अब अगर काटना है तो इसको 1-1 मीटर का भी काट सकता हूँ, 2-2 का भी काट सकता हूँ, 5 मीटर का भी, 10 मीटर का भी काट सकता हूँ। इसको भी काट सकता हूँ 1 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 15 मीटर। इसको भी काट सकता हूँ 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 25 मीटर काट सकता हूँ ना। लेकिन सारे टुकड़े बराबर होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, कॉमन फैक्टर। समझ में आ रहा है? कॉमन फैक्टर यानी कि दोनों कट जाए। कौन कौन से कटेंगे, 1 मीटर और 5 मीटर, 1 मीटर और 5 मीटर, 1 मीटर और, यानी कि अगर मैं 10 मीटर वाला टुकड़ा है, 1-1 मीटर के काटूंगा, 10 टुकड़े बनेंगे। कट करने का मतलब है वेस्टेज नहीं होना चाहिए, मतलब कंप्लीटली डिविजिबल। अगर आप 2-2 मीटर के कपड़े काटोगे मान लो, तो 10 मीटर तो कोई वेस्टेज नहीं है, लेकिन 15 में तो वेस्टेज हो जाएगी। तो हमें वेस्टेज नहीं चाहिए। इसका मतलब वी आर लुकिंग फॉर नंबर्स व्हिच कैन कंप्लीटली डिवाइड द गिवन नंबर्स, व्हिच इज नथिंग बट फैक्टर। तो हम क्या देख रहे हैं, फैक्टर। तो लेकिन अब 2 मीटर तो फैक्टर है 10 का, लेकिन वो फैक्टर 15 का नहीं है।
तो हमें वो वाले चाहिए जो दोनों को डिवाइड करें, यानी अगर अपन 1-1 मीटर का टुकड़ा काटें तो कट तो जाएगा सारा कुछ और कुछ भी वेस्टेज नहीं है और सब बराबर है। बट एक कंडीशन वायलेट हो गई, क्या था? लार्जेस्ट पॉसिबल टुकड़ा। क्या इससे बड़ा टुकड़ा नहीं कट सकता? कट सकता है 5-5 मीटर। तो 5 क्या है बेसिकली? HCF। ये फैक्टर हो गए, कॉमन फैक्टर क्या हो गए? 15 15 15। इसमें हाईएस्ट क्या है? जो कि मेरा क्या है? HCF। तो अगर आप HCF निकालोगे 10, 15 और 50 का, तो 10 क्या बनेगा? 2 इंटू 5। 15 क्या बनेगा? 3 इंटू 5। और 50 क्या बनेगा? 2 इंटू 5 इंटू 5। तो जो कॉमन चीज है वो है 5। तो इसका HCF क्या हो गया? 5। इसका मतलब अगर अपन 5-5 मीटर का रस्सी काटें तो क्या होगा? कोई भी रस्सी बेकार नहीं जाएगी, यानी ठीक है, कोई वेस्टेज नहीं है, सारी टुकड़े की लेंथ बराबर है और वो मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ है। तो 10 मीटर में कितने पीस बनेंगे? 2, इसमें 3 और इसमें 10। टोटल पीस कितने बन गए? तो हमें 15 टुकड़े मिलेंगे। ये मेरा आंसर है। कुछ समझ में आ रहा है? फैक्टर, रस्सी काटनी है अपन है, 1-1 मीटर की काटेगी कुछ नहीं बचेगा, 2-2 मीटर की काटे, 3 मीटर की काटेगी तो बचेगा नहीं बचेगा, 1 मीटर का वेस्टेज हो जाएगा ना। तो इसलिए हमें क्या चाहिए? फैक्टर्स चाहिए। तो 1 to 5 10 आर फैक्टर्स। क्या हुआ? पानी आ रहा है? हाँ, ये आ रहा है। मैंने कई बार कंप्लेंट भी करी पीछे, बट चलो समस्या है। कैसे पीछे से ना ये लाइन, बारिश आ रही है क्या बाहर? आ रही थी, अभी तो धूप हो गया था अचानक ही। चलो कोई बात है। हाँ ओके, ठीक है। ऊपर से आ रहा है, ऊपर कॉर्नर से। ठीक है, यहां तक क्लियर है? HCF की एप्लीकेशन समझ में आई? ऐसे चलो एक और क्वेश्चन पूछ लेता हूं। डिपेंड करता है। देयर आर 2 क्लॉक्स। Both the clocks are showing a time of 1. The first clock gives a sound of tick, 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 tick every 5 minutes. The second clock makes a sound of tock, 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 tock every 7 minutes. Okay. If both the clocks made the sound of tick tock simultaneously at exactly 1 o'clock, at what time will both the clocks ring again as tick tock for the second time after 1 p.m.? ये चिंता ना कर, जवाब गलत है, कोई बात नहीं, इसमें क्या है। टिक टॉक, पिछला टिक है ना? अच्छा, ये टॉक टॉक टॉक। हाँ, क्वेश्चन समझ में आ गया, भावनाएं समझ में आ गई ना मेरी? अच्छा, देखते हैं भाई। एक बजे दोनों सही टिकटॉक बोलती हैं, 1 बजे के बाद दूसरी बार दोनों इकट्ठे टिकटॉक कितने बजे बोलेंगी? क्वेश्चन बदल दिया मैंने, वो B1 में था, ये B2 का है इसलिए आंसर गलत है तेरा
किन चक्रों में है तू? उसमें आंसर था 1-10, इसमें नहीं है। रोहित, मुझे आप सेकंड टाइम कह रहे हो, वो 1 PM के बाद सेकंड टाइम या फर्स्ट टाइम, क्या मतलब वो? नहीं, 1 PM के बाद देते, आफ्टर 1 PM बोला है ना मैंने। तो अब 1 PM के बाद फर्स्ट टाइम है ना, कि कब बजेगी? सेकंड टाइम बेटा, 1 PM तो इकट्ठी बजी, उसके बाद सेकंड टाइम कब बजेगी? हाँ अच्छा, मतलब तो फिर तो 1:35 होगा। क्यों होगा बेटा 1:35? 5 और 7 का एलसीएम। किन चक्करों में क्या जरूरी है? एलसीएम का क्वेश्चन आएगा, सीएम का भी तो क्वेश्चन आ सकता है भाई। 1 बजे के बाद पहली बार 1:35 है, पर मैं पूछा तो नहीं है, मैं तो कब पूछा है? दूसरी बार। हाँ, ऑब्जर्वेशन करा। हाँ, मैं कह रहा हूँ आदि मैथ्स का पंगा ही है, ये क्वेश्चन नहीं समझ में आता कैट में, तो प्रॉब्लम ही है। Okay, so now this question is primarily belongs to LCM, but no, it is not necessarily directly using the idea of LCM. So what is it using? Just for the sake of explanation, मान लेते हैं 1 बजे इसने आवाज करी टिक की, अगली बार कब आवाज करेगा ये? 1:05, फिर कब करेगा? 1:10, फिर कब करेगा? 1:15, फिर कब करेगा? 1:20, फिर कब करेगा? 1:25, फिर कब करेगा? 1:30, देन 1:35, देन 1:40, इस टाइप से चलता जाएगा। और ये सेकंड वाला है, उसमें 1 o'clock उसने क्या किया? टॉक। अब ये अगली बार टॉक करेगा 1:07 पे, फिर करेगा 1:14 पे, फिर करेगा 1:21 पे, फिर करेगा 1:28 पे, फिर करेगा 1:35 पे, फिर करेगा 1:42 पे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो 1 बजे के बाद पहली बार कब किया इसने? 1:35, विच इज नथिंग बट एलसीएम ऑफ द टाइम्स। 1:35 क्या है? 5 और 7 का एलसीएम है, क्योंकि वो हर 5-5 मिनट में करेगा और ये 7-7 मिनट में करेगा, तो कॉमन पॉइंट क्या होगा? कॉमन पॉइंट दोनों का एलसीएम हो, लेकिन वो पहला कॉमन पॉइंट एलसीएम। अगला कॉमन पॉइंट कब आएगा? डबल 70। अगला कॉमन पॉइंट कब आएगा? वापिस 35 ऐड करते चलो। जब हमने एचसीएफ एलसीएम किया था तो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे अपना 24 आया था, अगली बार कब आया था? 38, उसका डबल, फिर अगली बार क्या आया था? उसका 777, ऐसे चलेगा। तो जब पहली बार दोनों से इकट्ठे बजेंगी 1 बजे के बाद, वो कब बजेंगी? 1:35, फिर 1:70 यानी 2:10, फिर कब बनेगी? 35 मिनट और 2:45, है ना? समझ में आ रही बात? तो हर 35-35 मिनट पे दोनों इकट्ठे टिकटॉक। नाउ दिस इज एन एप्लीकेशन क्वेश्चन ऑफ एलसीएम। आ रही बात समझ में? These are some, so you will have questions in exams which are primarily based on application of HCF. Nobody is really going to ask, find HCF or LCM. And if they ask, then it would be something complex in terms of decimal, fraction, recurring और variable, वैसा होगा। और ultimately apply कहीं ना कहीं करना पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ तक बेसिक आइडिया समझ में आ रहा है HCF LCM क्या होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, उसका बेसिक एसेंस क्या है। Let's just take some of the models that we have in the exam in our books. I'm sure everybody can arrange one book on their tables. So let us take this first question. I'm on page number 9. It says, find the smallest number which when divided by 4 or 7 leaves the remainder 13 in each case, the numbers being greater than the 2 divisor. I'm talking about example 1.18. You want me to type this question or 8? Find the smallest number which when divided by 4 or 7 leaves the remainder 3 in each case, and the number being greater than the 2 divisors. So what are we looking at? We are looking at smallest number. We are looking at a smallest number which when divided by 4 or 7 leaves the remainder 3 in each case. Now, had the question been, ये नहीं दिया होता, रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट नहीं होता, और आपसे पूछा गया होता व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 और 7,
किसका क्वेश्चन है? एलसीएम. सो स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 4 और 7 इज नथिंग बट LCM of 4 and 7, which is 28. So 28 happens to be that smallest number which is divisible by 4 and now what are we looking at? हमें क्या चाहिए? रिमाइंडर. रिमाइंडर का क्या मतलब होता है? वो फालतू संख्या जिसकी वजह से वो नंबर डिवाइड नहीं हो रहा और वो बच गया. तो चूंकि हमें यहाँ फालतू कितना चाहिए? 3, तो इसमें 3 जोड़ दो बस. समझ में आ रहा है? आंसर क्या बन जाएगा? 31. नाउ इफ यू टेक 31 डिवाइडेड बाय 7 तो कितना? 7 4 जा 28, रिमाइंडर 3 आ रहा है. इफ यू डिवाइड 31 बाय 4, 4 7 जा 28, रिमाइंडर वापस 3 आ रहा है. यानी जो रिमाइंडर चाहिए वो हमने चुपचाप बाद में ऐड कर दिया, काम खत्म हुआ. कोई दिक्कत है इसमें? हाँ बेटा बोल. हाँ ग्रेट. तू ये भी तो कह सकती थी सर 3 ले लो. अब 4 से डिवाइड करेगी 3 को, रिमाइंडर क्या आएगा? 3 डिवाइडेड बाय 4, 4 0 जा 0, रिमाइंडर आ गया 3. एंड फिर तू बोलेगी सर इसको 7 से डिवाइड कर दो, 0 को, 3 को 7 से डिवाइड करो, 7 0 जा 0, रिमाइंडर 3. तो एक आंसर क्या हो सकता है? 3. ये भी तो आंसर है. 3 भी तो आंसर है, बिकॉज 3 when divided by 4 will give me remainder 3 and 3 divided by 7 will also give me remainder 3. So he is asking हमें कौन सा नंबर चाहिए? ग्रेटर देन द 2 डिवाइसेस, यानी 4 और 7 से बड़ा होना चाहिए, यानी 3 नहीं चाहिए. अगला बताओ आंसर क्या है? पल्ले पड़ रही है कहानी? हाँ बता, कहाँ कंफ्यूजन है? ग्रेटर देन वाले मैं ये कह रहा हूं, जो मेरे को आंसर चाहिए वो 4 और 7 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस सवाल का जवाब अगर ये ना लिखा होता तो आप मेरे को 3 बोल देते ना, वो भी सही होता. क्योंकि 3 को 4 से डिवाइड करेगा, रिमाइंडर क्या आएगा? 3. और 3 को 7 से डिवाइड करेगा, तो वही तो पूछ रहा है, ऐसा नंबर बताओ 4 से डिवाइड करूं तो भी 3 है, 7 से डिवाइड करूं तो भी 3 है, तो 3 ही ले ले, आ जाएगा आंसर. वो कह रहा है वो मत बता, अगला बता. नहीं है. अच्छा, एक मान लो मैंने बोला ये तो स्मॉलेस्ट नंबर था, सेकंड स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए अपने को, फिर क्या करोगे? या 31 का डबल करें? क्योंकि जो पहला नंबर डिवाइड हो रहा है वो 28 इंटू 1 हो रहा है ना. अगला जो नंबर होगा वो 28 इंटू 2 होगा, जो 4 और 7 से डिवाइड होगा, और प्लस हमें रिमाइंडर चाहिए तो +3 करना पड़ेगा. यानी ऑल द नंबर्स इन द फॉर्म 28k + 3 when divided by 4 and 7 will give me a remainder of 3. इसका ये मतलब है. And what is k? It could be 0 1 2 3 4. 0 का मतलब 3 आ जाएगा पहला, जो नहीं चाहिए इस केस में. 1 पुट करोगे तो 31 जो आंसर है, 2 पुट करोगे तो 56 + 3 59, 3 पुट करोगे तो 28 इंटू 3 + 3 जो भी आएगा. आ रही बात समझ में? हम इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं, इस आइडिया को. थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन है ये. Okay, now what is this saying? Find the smallest 6-digit number which when divided by 3 or 11 leaves the remainder 2 in each case. अब अगर ये क्वेश्चन सिंपल होता कि व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 2-डिजिट नंबर, तो हम क्या कर लेते? जो 3 और 11 से डिवाइड है तो क्या करते? एलसीएम ले लेते. कितना आएगा? 33. यानी 33k + 2, ये सारी वो संख्याएं हैं, +2 कर दिया. अब ऐसे सारे नंबर इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे. k कैन बी एनीथिंग बिटवीन, इट कुड बी 0 1 2 3. ये बात समझ में आती? अब हमारा क्वेश्चन ये है कि 6 डिजिट की वो सबसे छोटी संख्या, 6 डिजिट की वो सबसे छोटी संख्या जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है. 6 डिजिट की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? व्हाट इज द स्मॉलेस्ट 6-डिजिट नंबर? 1 1 2 3 4, ये सबसे छोटी संख्या है. इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू है वो लगभग इसके आसपास होनी चाहिए. आ रही बात समझ में? क्योंकि 33k + 2 मस्ट बी समवेयर हियर.
अब हमें यहां से क्या निकालना है, के, क्या निकालना है, के। और के क्या है, कोई ना कोई नेचुरल नंबर है, फ्रैक्शन में नहीं आना चाहिए, क्योंकि या तो 1 होगा या 2 या 3, या तो तुक्का मारे निकालें, और या -2 करके के की वैल्यू निकालेंगे। कैसे, -2 करो या ना करो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा सीधा सीधा करो, 1 2 3 4 5, -2 करोगे तो 999998 आ जाएगा, और तो कोई बात। इसको किससे डिवाइड करना है, मान लो अपने को 33 3 जा 99, 1 आया 0 आया, नहीं जाने की 0 लगाएंगे अपन, ऊपर से उतारेंगे 0, ठीक है, ये 0 था ये। अब ये किस में जाएगा, वापस 3 में जाएगा, 99 1 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, 0 लगाना पड़ेगा, ठीक है, और 0 आ गया, बट बिंदी लगेगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। इसका मतलब ये है कि 33 इंटू ये करेंगे तो लगभग ये 5 डिजिट का वैल्यू आ जाएगी। तो हम अगर मान लो के की वैल्यू 3030 मान लेते हैं, के की वैल्यू 3030 मान लेते हैं, और अगर इंटू 33 कर दें, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, 0909, यहाँ काटा मारना पड़ेगा, 0909, तो मेरा आंसर आएगा 09999। इसका मतलब है कि अगर मैं के की वैल्यू 3030 ले लूं तो मेरा एक नंबर बनेगा 99990। ये ऐसा नंबर है जो 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 11 से भी डिवाइड हो रहा है, क्योंकि 33 के की फॉर्मेट है में। अगर मुझे रिमाइंडर 2 चाहिए तो मैं +2 कर दूं, काम चल जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, +2 करने पे भी 1 2 3 4 5 डिजिट का नंबर आया, यानी इट इज, अगर मैं ये करता हूं तो इसका ये पता है किस सवाल का जवाब है, लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 3 and 11 गिव्स मी अ रिमाइंडर। तो ये उसका जवाब है, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, स्मॉलेस्ट, यानी कि जो ये नंबर है इसका जो अगला नंबर होगा वो 5 डिजिट का हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई करें या सीधा 33 ऐड कर दूं, काम चल जाएगा। या तो यहाँ पे 31 से करके मल्टीप्लाई करो, इतनी मेहनत क्यों करनी है। एक अगला नंबर क्या होगा, इसमें 33 जुड़ जाएगा, समझ में आ रहा है। मान लो मैंने कहा 8 इंटू 9 72, अगर मुझे 8 इंटू 10 करना है फालतू का, या तो इसमें 8 जोड़ दूं तो भी काम चल जाएगा, या वापस मल्टीप्लाई 33 जोड़, ये बनेगा 3 9 और 3 12, हासिल 1 10, हासिल 1 10, हासिल 1 10, ये बनेगा। इसका मतलब है 100023, कितने हो गए, 6 डिजिट का नंबर हो गया। दिस इज द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 एंड, हाँ, इज स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 एंड 11। बट हमें रिमाइंडर भी चाहिए, तो इसमें +2 कर दो, तो आंसर आ जाएगा 1 1 2 3 2 5। दिस विल सेटिस्फाई द कंडीशन दैट वी आर सर्चिंग फॉर। इसलिए हमने हाँ नेक्स्ट नंबर ऐड किया, यानी एक 33 और ऐड कर दिया, यानी के की वैल्यू जो हमने 3030 मानी थी वो नहीं चाहिए, 3031 चाहिए थी, तो उतनी वापस मेहनत ना करके, क्योंकि हमें इंटीजर चाहिए, के एक इंटीग्रल वैल्यू है, फ्रैक्शन का मतलब यहाँ कुछ बचेगा, हमें तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू चाहिए, के की एग्जैक्ट वैल्यू निकलेगी नहीं, अंदाजा वैल्यू चाहिए। नहीं, अगर डेसिमल के बाद छोड़ दो बस। हाँ बेटा बता, क्या नहीं समझ में आ रहा, नहीं आया कुछ भी। 33 से क्यों मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे ऐड ऐड, ये मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि मुझे ये के मिल गया, यहाँ पे मुझे ये संख्या इसकी ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू तो 33 इंटू के करके ही आएगी, तो ये इसलिए मैंने 33 इंटू के किया, ताकि मुझे ये वाली वैल्यू मिल जाए। ये जो वैल्यू है वो इसके बराबर है, इसके बराबर। वो कैसे निकलेगा, वो यहाँ से निकला, मैंने मल्टीप्लाई करके यहाँ से निकाला, तो इसलिए मल्टीप्लाई करना पड़ा मुझे, क्योंकि 33 के तो निकालना ही पड़ेगा ना, क्योंकि मेरा आंसर है 33 के +2, के एक अंदाजन वैल्यू आ गई, लेकिन आंसर तो 33 के +2 है ना, तो 33 इंटू के की वैल्यू तो चाहिए ही, इसलिए मैंने निकाल ली। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं, ठीक है। क्या हुआ, लिखना है कुछ,
Find the smallest number greater than the divisors which when divided by 4, 7 or 11 leaves the remainder 3 in each case. क्या करना है? इन तीनों का क्या करना पड़ेगा? एलसीएम। एलसीएम कितना आ रहा है? 308. Now 308 is a number which is divisible by 4, 7 and 11. हमें रिमाइंडर चाहिए तो हम +3 कर देंगे तो बन जाएगा 311, ये आंसर आ जाएगा। तो बेसिकली मेरे को करना है एलसीएम प्लस रिमाइंडर। ये समझ में आ रहा है? दिस इज वन टाइप ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कम अक्रॉस इन एलसीएम। ये भी एक तरह का एप्लीकेशन है। अब हम आते हैं अलग टाइप के क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन देखते हैं। Find the smallest number which when divided by 4 and 7 leaves the remainder 2 and 5 respectively. Now, if you look at this first one, you have to find a number which when divided by 4 and 7 leaves the remainder 2 and 5. Now, if this 2 and 5 is not given, then my answer will become 28 because 28 is divisible by 4 and 7. लेकिन अगर मुझे 2 का रिमाइंडर चाहिए तो मैं 28 में +2 जोड़ के 30 बना लूंगा, तो ये आंसर इसके लिए तो वैलिड हो जाएगा, दूसरे के लिए रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें मैंने 5 ऐड कर लिया तो 28 + 5 33, ये सेकंड वाले के लिए तो वैलिड हो जाएगा, फर्स्ट वाले के लिए रह जाएगा। लेकिन हमें तो एक ही आंसर चाहिए। अब समस्या यहाँ पे आ गई किसकी, कि दोनों अलग अलग। अगर सिंगल रिमाइंडर होता तो हम एलसीएम प्लस रिमाइंडर कर लेते। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है, उसको बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर होता क्या है हम ये समझते हैं। मान लेते हैं मैंने एक नंबर लिया 7 और मैंने उसको डिवाइड किया 4 से, तो 4 1 जा 4, यहां लिखेंगे रिमाइंडर आएगा 3। नाउ व्हाट इज दिस 3? 3 is that extra value which is preventing 7 from becoming completely divisible. यानी कि 3 वो संख्या है जो कि 7 में फालतू है, 7 में फालतू है, जिसकी वजह से 7 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं हो रहा। तो अगर मैं 7 में से ये फालतू संख्या को निकाल दूं तो ये नंबर 4 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? रिमाइंडर का मतलब फालतू जिसकी वजह से 7 नहीं डिवाइड हो रहा 4 से। अगर मैं 7 को बाहर कर दूं तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आप ये भी तो कह सकते हो सर इसमें आप 3 घटा रहे हो, 1 जोड़ दो ना तो भी तो बात बन जाएगी। ये भी तो, क्योंकि डिवाइड करके रिमाइंडर 0 ही तो करना है। तो अगर आपने 1 जोड़ दिया तो भी तो ये रिमाइंडर 0 बना देगा, उसमें क्या दर्द है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस 3 जो बचा है ये तो पॉजिटिव रिमाइंडर होता है, और ये जो 1 की कमी है वो नेगेटिव रिमाइंडर होता है। कैसे? देखो हमें 4 से डिवाइड करना था, 3 ऑलरेडी है, कितना और चाहिए? 1। वो कैसे पता चलेगा इन दोनों का डिफरेंस? कुछ समझ में आ रहा है? भाई 4 से डिवाइड किया, 3 बच गया, कंप्लीट डिवाइड करने के लिए 4 चाहिए था, 1 और चाहिए, वो कैसे पता चलेगा? दोनों के डिफरेंस से। मान लेते हैं मैंने कहा 13 डिवाइडेड बाई 11, 11 1 जा 11, रिमाइंडर 2। या तो 2 फालतू है या कितने की कमी है? 9 की, क्योंकि ऑलरेडी 2 है और मुझे 9 और मिल जाएगा तो 11 बन जाएगा। तो ये 9 कैसे आया? इन दोनों का डिफरेंस, इसको बोलते हैं नेगेटिव रिमाइंडर। 9 की कमी है। 13 को 11 से डिवाइड करो, कितना बचेगा? 2। 2 फालतू है या 9 की कमी है, ये कैसे पता चला? माइनस करके डिवाइजर में से रिमाइंडर को, क्योंकि कंप्लीटली डिविजिबल होने के लिए 11 चाहिए, 2 ऑलरेडी है, तो जो कितना और चाहिए वो डिफरेंस से पता लग जाएगा। ये बात समझ में आ रही? अब किसी संख्या को 4 से डिवाइड करके 2 फालतू बच रहा है, कितने की कमी है? 2 की। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है? 2, तो -2 रिमाइंडर हो गया। 7 से डिवाइड करोगे 5 बच रहा है, कितने की कमी है? 2 की कमी है, रिमाइंडर सेम हो गया। एलसीएम प्लस रिमाइंडर ही क्वेश्चन था, आंसर था मेरा। क्या करते? एलसीएम प्लस रिमाइंडर। तो एलसीएम है 28, इसमें रिमाइंडर क्या है? -2, रिमाइंडर क्या है?
-2, तो मेरा आंसर हो गया 26। अब 26 को चेक कर लो, 26 व्हेन डिवाइडेड बाय 4, 4 6 24, रिमाइंडर इज 2, ये आ गया। और 26 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 21, तो रिमाइंडर 5 आ गया, वही आ गया। किताब में इसको ऐसा लिखा होगा एलसीएम माइनस रिमाइंडर, क्या लिखा है एलसीएम, लेकिन बेसिक एलसीएम प्लस रिमाइंडर ही है। द ओनली थिंग इज रिमाइंडर इज अ नेगेटिव क्वांटिटी, नेगेटिव रिमाइंडर है। समझ में आ रही बात? तो हमने ऐड करके आंसर नहीं। मान लेते हैं 26 इज डिवाइडेड बाय 23, so 23 ones are 23, I say reminder is 3. Now I am really looking at this being 0, मैं चाहता हूं डिवाइड हो जाए। ये 3 रिमाइंडर का जो मतलब है वो ये है कि इस 26 के अंदर ना 3 फालतू है, जिसकी वजह से 23 इस नंबर को पूरी तरीके से नहीं डिवाइड कर पा रहा। ये रिमाइंडर की डेफिनेशन होती है। क्या मतलब होता है? 26 में कुछ फालतू है, वो कुछ क्या है? 3 है, जिसकी वजह से 23 उसको डिवाइड नहीं कर पा रहा। तो अगर मैं 26 में से 3 निकाल दूं तो डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एजेंडा क्या है? डिवाइड करना। समझ में आ रहा है? 3 फालतू है तो निकाल दिया 3। दूसरा तरीका सोचने का है कि आप ये कहोगे सर इसको ना 20 जोड़ दो तो भी डिवाइड हो जाएगा। अब 23 डिवाइड रिमाइंडर ना है तो 23 का मल्टीपल चाहिए, 3 ऑलरेडी है मेरे पास, कितना और चाहिए? 20। ये कैसे पता चलेगा? जो ऑलरेडी आ गया और जो चाहिए दोनों का सम 26 होना चाहिए। ठीक है, तो हमें कैसे निकलेगा? 20 की कमी है, कैसे पता चलेगा? 23 चाहिए, 3 है, तो 23 में से 3 निकाल दें, तो इसका मतलब 20 की कमी है, 20 चाहिए, तो नेगेटिव रिमाइंडर -20। यही समझना है। फाइव की कहाँ बेटा? हाँ हाँ, तो नेगेटिव रिमाइंडर सेम नहीं आता। हाँ, वो 10 मिनट और रुको, अभी वो वहां पे भी आऊंगा मैं। आएगा आएगा, चिंता ना करो, सारे लूंगा। हाँ, इसका एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, मल्टीपल वाला भी। ठीक है, फिर आते हैं उस पर जो तुम पूछ रहे हो, हम उस पर भी आएंगे। ठीक है, करेंगे सारे, जो दिमाग में दुविधाएं हैं सब निकालेंगे, टेंशन नहीं उसकी। ओके, फाइंड द लार्जेस्ट 4-digit number which when divided by 5 and 9 leaves the remainder 3 and 7 respectively. फोर डिजिट नंबर। ओके, तो सबसे पहले ब्रेक करते हैं सवाल। हमें वो संख्या चाहिए जो 3 और 7 से डिवाइड हुए और हमें रिमाइंडर आए, सॉरी 5 और 7 से, 5 और 9, और मुझे रिमाइंडर चाहिए 3 और 7। तो सबसे पहले एलसीएम बनेगा 45। 45 तो इससे डिविजिबल है। अगर मुझे स्मॉलेस्ट नंबर चाहिए होता तो मैं 45 में रिमाइंडर ऐड कर देता। अब रिमाइंडर देखो, यहाँ पे 3 फालतू है, 5 से डिवाइड किया, कितना फालतू है? 3, कितने की कमी है? -2। 9 से डिवाइड किया, कितना फालतू है? 7, कितने की कमी है? तो नेगेटिव रिमाइंडर कितना है? तो मेरा आंसर हो जाएगा 45 प्लस कितना? -2, यानी 43। अब 43 को चेक करके देखो, 43 इज डिविजिबल बाय 5, 5 8 40, रिमाइंडर 3 आ रहा है, काम चल गया। 43 को अपन 9 से चेक करते हैं, कितना बन जाएगा? 9 5 35, 9 4 36 आ रहा है, 7। ओके, काम चल गया। हाँ, अभी पूरा क्वेश्चन नहीं किया, मैं तो ये समझा रहा हूं कि अगर ना लिखा होता तो क्या करते हम। अभी तो ये सबसे छोटा नंबर है, बट ये आंसर गलत है इस क्वेश्चन के हिसाब से। अभी अपने को क्या चाहिए? मैक्सिमम 4-digit नंबर। इसका मतलब मेरा जो फॉर्मेट है वो क्या होना चाहिए? 45 के
प्लस आर, यहाँ पे नेगेटिव आर आएगा बेसिकली, या माइनस आर, जो भी, मतलब समझ में आ रहा है। दिस नंबर मस्ट बी अप्रोक्सीमेटली 9999, अंदाजा मोटा मोटा, समझ में आ रहा है। सबसे पहला नंबर जो डिवाइड हो 45, अगला होगा 45 इंटू 2, अगला होगा 45 इंटू 3। तो जो 45 के की वैल्यू कहाँ होनी चाहिए? हाँ, मतलब 999 के पास होनी चाहिए। हम ये रिमाइंडर एक बार छोड़ देते हैं, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, हमें के इंटीग्रल वैल्यू निकालनी होती है। 999 को किससे डिवाइड करूं? 45, 45 टू जा 90, 99, 45 टू जा 90, 99 टू जा 90। अब कुछ डेसिमल डुसिमल आएगा, हमें कोई लेना देना नहीं है। हम बहुत नजदीक पहुंच गए। किसके नजदीक पहुंच गए? 4 डिजिट, मैक्सिमम 4 डिजिट के नजदीक। तो मेरे को 222 इंटू 45 देखना, यही बात है, क्योंकि ये 45 के की वैल्यू देगा। समझ में आ रहा है क्यों मल्टीप्लाई करने? तो 5 टू जा 10, कैरी 1 10 1 11, कैरी 1 10 1 11, काटा मारेंगे 4 टू जा 8 8 8, तो हमारा आ गया 0999। तो 9990 वो सबसे बड़ी 4 डिजिट की संख्या है जो कि 5 और 9 से कंप्लीटली डिवाइड हो रही है। लेकिन अपने को रिमाइंडर चाहिए 3 और 7, यानी नेगेटिव रिमाइंडर क्या चाहिए? 2। तो इसमें प्लस माइनस 2 कर दें, तो ये बन जाएगा 9988। ये वो नंबर है जो लार्जेस्ट 4 डिजिट का नंबर है, जिसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 बचेगा, जिसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 9 से डिवाइड करेंगे तो 7 बचेगा। इसका ये मतलब है। अगर मान लो मैं बोलता स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, तो क्या करते? इसका नेक्स्ट ले लेते, कुछ नहीं करते, यहां पे हम 45 और ऐड कर देते, तो बचता 5 13 0, ये बचता। तो ये वो संख्या है जो कंप्लीटली डिविजिबल है, लेकिन हमें नेगेटिव रिमाइंडर भी चाहिए -2। यहां पर भी कर सकते थे, लेकिन समझाने के लिए मैंने किया 10033। ये लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर है, which when divided by 5 and 9 will give me a remainder of 3 and 7। ये इसकी एप्लीकेशन है। समझ आ रहा है क्या कह रहा हूं मैं? पक्का? हाँ जी, ऑल ऑफ यू आर गेटिंग इट? पीछे इधर से बेटा सभी लोगों को ओके। हाँ, जो नेगेटिव रिमाइंडर है। अब ये वो समस्या है जहां पे वो कह रहा है कि सर अगर नेगेटिव रिमाइंडर भी सेम नहीं हुआ तो क्या करेंगे? तो हम जबरदस्त फंसेंगे, बहुत हाई क्वालिटी क्वेश्चन बनेगा उस केस में। ठीक है, उसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा समझाना पड़ेगा, वो मैं समझाने की कोशिश करूंगा, बट इट्स अ गुड क्वालिटी क्वेश्चन दैट नीड्स टू बी हैंडल्ड। नाउ लेट अस जस्ट टेक एन एग्जांपल, जो इन्होंने कहा है हम उसी का कोई एग्जांपल ले लेते हैं। Find out the smallest number which when divided by 7 gives me a remainder of 3, and when divided by 5 gives me a remainder of 2. Now let us say we are, oops. So now what do we have? We have a smallest number, हम एक नंबर चाहिए, when divided by 7 gives me a remainder of 3, and when divided by 5 gives me a remainder of 2। ये बात है। 7 से डिवाइड करेंगे 3 आना चाहिए, 5 से डिवाइड करेंगे 2 आना चाहिए, अलग अलग है, तो हम क्या नेगेटिव रिमाइंडर चेक करेंगे। 5 से डिवाइड किया तो 2 आना चाहिए, नेगेटिव रिमाइंडर कितना है? और 7 से डिवाइड किया तो 3 आना चाहिए, क्या है रिमाइंडर? -4, -4। अब नेगेटिव भी अलग हो गया, मामला फंस गया। अब समझ में आ रहा है? अब मामला फंस गया। अब इसको कैसे करेंगे, इसको समझते हैं। हाँ बेटा, यहां ध्यान दो एक बार इस पे ना। मान लेते हैं नंबर n है, हाँ 3 में 4 की कमी है 7 बनाने के लिए। हाँ +4 और चाहिए, तो फिर इसको नेगेटिव बोलना पड़ेगा, कन्वेंशन तो मानना पड़ेगा ना। अगर हमने खड्डे को पॉजिटिव माना है तो हाइट को नेगेटिव मानना पड़ेगा, और अगर हाइट को पॉजिटिव माने तो खड्डे को नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो जब हम पहले रिमाइंडर को पॉजिटिव मान रहे हैं
फालतू को पॉजिटिव मान रहे, तो कमी को नेगेटिव मानना पड़ेगा। कमी को पूरा करने के लिए ऐड करना पड़ता है, इसलिए तुम्हारे दिमाग में पॉजिटिव चल रहा है। बस वो सोचने का फर्क है, क्योंकि कन्वेंशन ऐसा है बस। ठीक है, अब ये इसको मैं बहुत एलिमेंट्री लेवल पे लेके जाता हूं। ये क्या कह रहा है, मेरे पास एक नंबर n है, जब मैं इसको 7 से डिवाइड करूंगा, कुछ तो k आएगा, मान लो k1 आएगा, यहाँ कुछ तो आंसर आएगा, और नीचे क्या बचेगा, 3। ये समझ में आती है बात? इस क्वेश्चन का तो यही मतलब है। n कैन बी रिटन एज 7k + 3, ये पता है आपको। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई नहीं समझाने की बात नहीं है। जब इसी n को मैं 5 से डिवाइड करता हूं, तो कुछ तो क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर आएगा 2। इसका मतलब जो n है, इसमें कोई दिक्कत है किसी को? n has to satisfy 2 conditions. What? 7k1 + 3 and n has to be 5k2 + 2. n तो सेम ही है। Can I say 5k2 + 2 is same as 7k1 + 3? इसमें कोई दिक्कत है किसी को? No problems? Okay. Now, basically, this is 2 variable and single equation question, typical of CAT, जहां पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स फालतू हैं, किससे? इक्वेशन से। तो प्रैक्टिकली k1 और k2 फॉर श्योर आइडेंटिफाई करना तो इम्पॉसिबल है, क्योंकि मैथ्स परमिट नहीं करता है। लेकिन यहां पे हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है? k1 और k2 आर नेचुरल नंबर्स। क्यों? क्योंकि k1 क्वोशिएंट है, या फ्रैक्शन तो आएगा नहीं, नेगेटिव भी नहीं आएगा, जीरो भी नहीं आएगा। क्या मतलब है? नेचुरल नंबर होगा। ओके, नेचुरल नंबर है, k1 और k2 निकालना है, तो हम k2 निकालते हैं। मान लेते हैं k2 की वैल्यू में सॉल्व, k2 कैन बी टेकन है 7k1 + 3 - 2, चलेगा, डिवाइडेड बाय 5। सो दिस इज 7k1 + 1 डिवाइडेड बाय 5। अब या तो ट्रायल एंड एरर यहां करें, या मेरे हिसाब से हम ऐसे कर सकते हैं 5k1 + 2k1 + 1 डिवाइडेड बाय 5। ये मेरे को लगता है आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बड़ा नंबर ट्राई करना पड़ेगा और यहाँ पे छोटा नंबर, तो ये कट जाएगा। यानी जो k2 की वैल्यू है वो k1 + 2k1 + 1 डिवाइड बाय 5। ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? अब k2 और k1 नेचुरल नंबर है। अगर k1 नेचुरल नंबर है और k2 नेचुरल नंबर है, तो 2k1 + 5 भी नेचुरल नंबर होगा, बिकॉज नेचुरल प्लस नेचुरल ही नेचुरल आएगा। 3 + हाफ करेंगे तो 3.5 नेचुरल तो नहीं बचेगा। तो नेचुरल में नेचुरल जोड़ेंगे तभी नेचुरल बनेगा। इसका मतलब है ये नंबर नेचुरल होना चाहिए। नेचुरल यानी 1 2 3 4 कुछ तो होगा, फ्रैक्शन तो नहीं हो सकता। कहना इसे, इसका मतलब 2k1 + 1 शुड बी डिविजिबल बाय 5। यानी k1 की ऐसा वैल्यू मेरे को लेनी है कि ये 5 डिवाइड कर दे। मान लो अपन ने k1 को 1 ले लिया, तो ये बनेगा 2 + 1 3, 3 डिवाइडेड बाय 5 डेसिमल में आएगा। डेसिमल प्लस इंटीजर फ्रैक्शन हो जाएगा। बता बेटा क्या नहीं आया? बोल 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 बोल। हाँ, मैंने क्या किया, इसको 5k1 + 2k1 लिख दिया। क्यों लिख दिया? ताकि 5 से 5 कट जाए। इसको मैंने तोड़ दिया। कैसे? फिर अलग अलग डिवाइड कर दिया, तो 5 से 5 कट गया, ये बच गया। k को 1 पुट करेंगे, बात बनेगी? 1 पुट करेंगे तो 2 + 1 3/5 नहीं बनेगी। k को आप 2 पुट करें, बात बनेगी? k1 को 2 2 या 4 + 1 5 बन तो रही है भाई, और क्या बनानी है आपने? k2 की वैल्यू आएगी, अगर आपने 2 पुट कर दिया तो यहाँ 2 रखना पड़ेगा, प्लस 2 × 2 + 1/5, यही बनेगा। तो k2 की वैल्यू बनेगी 2 + 1। समझ में आ रहा है? यानी k2 आप 3 पुट कर दें तो n की वैल्यू क्या बन जाएगी? 5 × 3, 5 × 3 + 2 कितना बन जाएगा? 17। अगर आप बोलो नहीं सर मेरे को तो ये करना है k1, तो इसमें वो पहले वाले में पुट करो, 7 × 2 + 3 17। ये आपका आंसर है। ये तरीका है सॉरी, ये आसान, सबसे आसान तरीका है।
ये किताब में देख, यहाँ से शुरू किया है, यहाँ समझाया है, खत्म किया है। इसी एग्जाम्पल को यहाँ शुरू करके यहाँ खत्म किया है, इससे छोटा मैं क्या कर रहा हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, बट ट्राई करने में दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है। 7k1 + 1/5। अब आप मान लो 1 पुट करोगे तो 7 + 1 8/5 करना पड़ेगा। जब 2 करोगे तो 7 2 जा 14 + 1 15 आ जाएगा, डिवाइड बाय 3। यहाँ तो जल्दी मिल गया। दिक्कत पता है क्या हो रही है, जो 7 + 1 8 हो गया, बड़े नंबर को 5 से डिवाइड करना है। ये तो छोटा क्वेश्चन है इसलिए दिक्कत नहीं है। जब बहुत बड़ा क्वेश्चन है, मान लो 283 आ गया, उस स्पेशल इक्वेशन में चले जाएंगे, मामला वहां फंसेगा। तो उसका जो शॉर्टकट है, शॉर्टकट मतलब फाइनली जो सिंपलेस्ट छोटी चीज चाहिए ना, अपन सारे मल्टीपल्स को साइड में करेंगे ताकि वैल्यू छोटी बचे, ट्रायल एंड एरर जल्दी हो जाए। क्योंकि करना तो ट्रायल एंड एरर, यहाँ पे तो 2 में मिल गया, मान ले 6 7 करने पड़ते तो सारी कैलकुलेशन करनी पड़ती फटाफट। उसका टाइम बचाने के लिए तरीका बताया मैंने। इसमें कोई गलती नहीं है, मतलब बस टाइम लगेगा। 1 सेकेंड। हाँ बता, तू बता। बेटा वही तो मानना है, और क्या किया समझाने के लिए कि n वही है और ये भी n वही है। n को ही तो इक्वेट किया, एक 2n फालतू लिखे हैं बस तेरे को, और 3। ये जो सारा ड्रामा है, ये थोड़ी समझाने का थोड़ी ना है। ये तो n की वैल्यू ऐसे लिखनी है, और ये भी लिखने की जरूरत थोड़ी ना है। बट हाउ डू यू नो व्हाट आई एम डूइंग। मैं तो यहीं पे गड़बड़ कर दी, देख 5 और 2 लिखना तो भी तो कंफ्यूजन हो गई। तो उसमें होने की संभावना है कंफ्यूजन, तो मैं वो कोशिश कर रहा हूँ मिनिमम संभावना हो कंफ्यूजन की। ऑफकोर्स एग्जाम में हम इसको थोड़ा और कर लेंगे, हाँ, और कॉम्पैक्ट कर लेंगे। तो डिस्क्रिप्शन एक्सप्लेनेशन में थोड़ा टाइम लग रहा है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी टाइप का एग्जाम्पल। अच्छा अच्छा, लिख लो, आराम से लिख लो, शांति से समझ सर लो इसको। ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वालिटी क्वेश्चन है, ताकि हम इसको अच्छे से कर सर सकें। हाँ बेटा बोलो। सर एक इक्वेशन ये बन सकती है 5k - 3 = 7k - 4। नेगेटिव रिमाइंडर वाली? यस सर। हाँ बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उससे भी आंसर आ जाएगा सर फिर? आना चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है हो सकता है एक वैल्यू कम आ जाए। हम जाना नहीं चाहेंगे उसमें, बट कर लो, आंसर आ जाना चाहिए वैसे तो। टेक्निकली तो मुझे इशू नहीं लग रहा है आंसर। नीचे करूं? रुक जाए 2 मिनट, रुक जाए बेटा। मैं मेरा समझ लेना, किसी को पूछना। क्या बेटा? अब ये ऊपर में कंफ्यूज होता हूँ, ऐसे वाला है या वैसे वाला, दूसरे वाला? अच्छा ये वाला। अच्छा मैं अपनी तरफ से ऊपर करूँ, ठीक है। ये 7 × 2 क्यों किया? क्योंकि ये 7k1 + 3 था, और k1 की वैल्यू अपन ने क्या ली है, 2। तो ये भी तो सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि n तो सेम ही है। जब आप, मैंने करके दिखाया है, बस जरूरत नहीं थी दिखाने के लिए कि देखो k2 डालोगे तो भी आएगा और k1 डालोगे तो भी आएगा, सेम आएगा, इसलिए किया था। वो तेरे साथ एक और आती थी, वो नहीं आई क्या?
सुन, तुम्हारे साथ एक और आती थी, वो B1 में ही है। अच्छा उसी में है क्या? ऑनलाइन है क्या? ऑनलाइन में। हाँ वो काफी लेट आई थी थोड़ा सा ना। B2 में भी लेट नहीं आई, तुम्हारे साथ ही आई? ठीक है। N, हाँ मतलब किसी भी सेंस में समझ सकते हो। एक और एग्जांपल ले लेते हैं और क्लियर। हाँ जी, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। आई वांट यू टू सॉल्व योरसेल्फ सो दैट वी आर श्योर कि हमें समझ में आ गया। ठीक है, लेट्स जस्ट टेक वन मोर एग्जांपल। Find the smallest number which when divided by 7 leaves the remainder of 6 and when divided by 11 leaves the remainder of 8. Now I want you to do this question by yourself completely. Hello कहां से आ गया? चलो इसको मिटा देते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन बच्चों कर रहे हो ना? पायल, यश, वेरी गुड। बाकी गरिमा, इशिता, मुस्कान, सुमन, आई होप समझ में आ रहा है कुछ। ठीक। ओके गरिमा, ओके गुड। इशिता वेरी गुड, ठीक है। है?
तो फिर ये नेक्स्ट के कंडीशन तो ये आएगी 7k1 plus 6 should be equal to 11k2 plus 8. अब अगर हमने लार्जेस्ट होल नंबर बोला तो जो k है वो कितना बड़ा होना चाहिए जहां पे वो के आसपास हो होना चाहिए। वो बन सके ट्रायल एंड एरर से याद है। अब पहला जो निकाला फिर वो डाल के अगला निकालते हैं फिर अगला निकालते हैं या तो पैटर्न मिलता या फिर वही ट्रायल एंड एरर नेक्स्ट निकालनी पड़ती। अभी तो सबसे छोटी निकाली वो बस आगे छोड़ दिया। अब आप कह रहे हो कि लेके जाना है, लेके जाने का मतलब मामला समझ रहे हो, k1 k2 मैक्सिमम करना है सच दैट लिमिटिंग टू हाँ सच दैट 9 के आसपास कहीं हो, बस ये वही करना है और कुछ करना है। टफ हो जाएगा क्योंकि ट्रायल एंड एरर बहुत लंबा हो गया। 2 है 4 है सेकंड थर्ड में कोई दिक्कत, मान लो मैक्सिमम 2 डिजिट आसान है, 3-4 निकालने पड़ेंगे। हाँ 6-7 ट्रायल में हो जाएगा। 4 डिजिट समझ रहे हो वो क्या काम है। हाँ हाँ जी, आर वी क्लियर ऑल ऑफ अस? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है क्योंकि अभी हमें HCF भी करना है और हमारे पास आधा घंटा है, 25 मिनट है। हालांकि दैट आर इजियर। आर वी क्लियर? 41 आ गया सभी का? कोई किसी को क्या बेटा? हाँ, कल DCS है। ओके ठीक है बेटा। हाँ इधर से आप ना समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं इधर से? हाँ बेटा क्या हाँ तो ये इक्वल टू कर दिया यहाँ, ये भी आ गया। वेरी गुड, यहाँ तक सही है। ये भी 7 कर दिया, ये 5 वेरी गुड, बहुत अच्छा किया ताकि आसान हो जाए। अब ये किसकी वैल्यू k1? मैंने 12 कर दिया, 7 और 5 12, 7 और 4 करना था यहाँ पे। हाँ तो बस 4 कर ले। हाँ तो इसीलिए नहीं निकल रहा है तेरा। बस बाकी सही आ जाएगा। बिल्कुल सही। अब ट्राई कर ले। 1 डालेगी तो 4 और 2 6 नहीं होएगा। 2 डालेगी तो 8 और 2 10। 3 डालेगी तो 4 3 12 and 2 14। तो इसकी वैल्यू 3 डाल दे। चाहती है 12 और 2 14, 2 आ गया। और k1 की वैल्यू 5 आ जाएगी, इसकी वैल्यू 4। चाहे इसमें डाल दे k1 डाल दे, चाहे k2 डाल दे, आंसर आ गया। काम खत्म। तूने यही गलती कर दी, बाकी हुआ पड़ा था क्वेश्चन। हाँ जी, कैन वी प्रोसीड नाउ ऑल ऑफ अस? Right, these are reasonably good questions. I mean, as far as our exam is concerned, these are good questions. Okay, now let's just take some more examples, 3 or 4 more examples, so that I'm sure that we have understood our HCF also. को प्राइम में क्या रिपीट करना था? कुछ था ही नहीं बेटा। अच्छा वो करा दूंगा, समझ गया तू क्या कह रहा है। कोई बात, विल डू इट। Okay, now let us look at this question. Find the largest number which, when 72 and 119 are divided respectively, reminders of 3 and 4 are left. Now you look at, ये हटा देना, ये ऐसे ही है। Look at this question. छोड़ो। With, which, when, सब एक साथ है।
हमें वो सबसे बड़ी संख्या चाहिए, कौन सी बड़ी संख्या, जिससे जब हम 72 और 119 को भाग दें तो रिमाइंडर 3 और 4 बचे। ये सवाल है किसका। एक बात सुनो, अगर ये रिमाइंडर का चक्कर नहीं पड़ता तो इसका क्या मतलब होता, इसका मतलब होता कि हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिससे कि ये दोनों नंबर पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएं। ये क्या निकालना था हमें, HCF निकालना, लेकिन वो तब निकालना था कि कंप्लीटली डिवाइड हो जाएं, लेकिन ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहे हैं। क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कितना बच रहा है, 3। यानी जब 72 को इस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो 3 बच जाता है, और जब एक 19 को इससे डिवाइड कर रहे हैं तो 4 बच रहा है। इसका ये मतलब है, हाँ, क्योंकि 72 को जब इस नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना बच रहा है, 3। तो अगर मैं उसमें से 3 निकाल दूं तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ रहा है। ये कह रहा है एक ऐसा नंबर बताओ जब 72 को उस नंबर से डिवाइड करें तो कितना बचे, 3। यानी 72 - 3 मस्ट बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस नंबर। उसी तरीके से 119 by -4 शुड बी कंप्लीटली डिविजिबल बाय दिस नंबर। इसका मतलब मैं एक ऐसी संख्या ढूंढ रहा हूं 69 कंप्लीटली डिवाइड हो जाए और 115 कंप्लीटली डिवाइड हो जाए। तो ये क्या चीज का क्वेश्चन है, HCF। क्या HCF इसका, ये आंसर है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है। हाँ बेटा बेटा तू क्या नहीं समझ में आया, लास्ट बेंच। हाँ क्यों किया, मान ले मैंने कहा कि 7 है, किसी नंबर से मैंने डिवाइड किया तो 2 बचना चाहिए। 7 को किसी नंबर से डिवाइड किया तो 2 बचना चाहिए। तो अगर मैं 7 में से 2 माइनस कर दूं तो ये नंबर पक्का इससे डिवाइड हो जाएगा। मैं ऐसा ही क्यों ले रहा हूं, बिकॉज कंप्लीटली डिवाइड करने वाले का तरीका मुझे आता है, इसका तरीका नहीं आता कि ऐसा क्या, क्योंकि इमेजिन करना पड़ेगा। तो एक ऐसा नंबर चाहिए 7 को डिवाइड करूं 2 बचे, तो मैंने कहा 2 रिमाइंडर है ना, रिमाइंडर यानी फालतू, फालतू की वजह से डिवाइड नहीं होता है नंबर। तो मैंने कहा भी जो फालतू है उसको माइनस कर दो, अब तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 72 को डिवाइड करके 3 आ रहा था, मैं कहा 3 निकाल लो इसमें से, अब तो डिवाइड होना चाहिए। ऐसे ही 119 को डिवाइड किया 4 आ रहा था, मैंने कहा 4 फालतू है, रिमाइंडर है, इसको निकाल लो बाहर। तो क्या बच गया 115। अब ये दोनों नंबर डिवाइड हो जाएंगे, और डिवाइड करने का मतलब HCF निकालना है, इसलिए मैंने माइनस किया। हाँ जी समझ में आ रही है बात, क्यों माइनस किया, ये लॉजिक क्लियर है। क्या तो 1 होता, क्या करते, कुछ मतलब ही नहीं, क्वेश्चन ही नहीं है, मतलब कोई क्वेश्चन का तुक नहीं बनता उसमें ना, लार्जेस्ट का तो कोई मतलब ही नहीं बन सकता था। ओके ये क्लियर है ये वाला, एक और एग्जांपल करने की जरूरत नहीं है इसकी। चलो दूसरा करते हैं फिर हम। Find the largest number with which when 555 and 1275 and 1635 are divided, the remainders are the same. ओके नाउ अगर मान लो एक क्वेश्चन होता कि इसमें रिमाइंडर 2 बच रहा है, इसमें 3 बच रहा है, 4 बच रहा है, तो आप क्या करते, रिमाइंडर माइनस कर देते और एलसीएम निकाल देते। अगर सेम रिमाइंडर भी दिया होता 2 2 2 तो क्या करते, लेस कर देते और निकाल देते। बट यहाँ पे हमें रिमाइंडर नहीं दिया, ये बड़ा समस्या की बात है। अब जो रिमाइंडर है वो हमें पता नहीं, तो मैं आर मान लेता हूं,
मानने में तो कोई हर्ज नहीं है, बिकॉज सम रिमाइंडर वी डोंट नो. सो व्हेन 555 इज डिवाइडेड बाय दैट नंबर, मेरा क्या बच रहा है? R. कैन आई से 555 माइनस R इज डिविजिबल बाय दिस नंबर? कोई प्रॉब्लम है इसमें? कैन आई से 171275 minus R is divisible by this number? Can I say 1635 minus R is divisible by this number? ये बात समझ में आती है? अब चूंकि R के बारे में हमें नहीं पता, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और समझाता हूं, फिर यहां पे आएंगे कि हम इसको ऐसा क्यों कर रहे हैं. मान लेते हैं मैंने कहा 8 is divisible by 2 and 6 is also divisible by 2. If I say 8 plus 6 is divisible by 2, is it a correct statement or a wrong statement? करेक्ट है. इंडिपेंडेंटली डिवाइड हो रहा है तो सम डिवाइड होगा. कैन आई ऑल्सो से 8 minus 6 विल ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 2? इसका मतलब है इफ द फर्स्ट नंबर इज डिविजिबल बाय 2 एंड द सेकंड नंबर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, their difference will certainly be divisible by 2. Any confusion? No. Now this number is divisible by this dabba, this number is also divisible by this dabba, the difference of these two will also be divisible by this dabba. लॉजिक है. डिफरेंस निकालते हैं. 1275 माइनस R माइनस ऑफ 55 माइनस R शुड बी डिविजिबल बाय दिस डब्बा और नॉट? अब क्या होएगा इसमें? हाँ, एक और 5 है. 555 वो डब्बा आता था पहले, इसको याद है? देख, सिगरेट का होता था वैसे वो. हाँ, मुरली, हाँ उसकी भी आती है. मेरे को जो दूसरा लग ध्यान है, नेवी कट अपना ब्लैक एंड व्हाइट, रेड एंड व्हाइट 555. डिलीट कर देना इसको भाई, इन हाउस कंजम्पशन के लिए, इसलिए मुझे ज्यादा परेशानी नहीं होती है. R और ये डब्बा, R gets cancelled. What is the difference? 720 is divisible by this डब्बा. क्लियर? उसी तरीके से इन दोनों का डिफरेंस लिया है अपन, इन दोनों का भी डिफरेंस ले सकते हैं. इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा? 1635 माइनस R माइनस ऑफ 1275 minus R should be divisible by this dabba because individually they are divisible. तो इसमें जब expand करेंगे तो 1635 minus R minus of 1275 plus R should be divisible by this box. R gets cancelled. क्या बचा? 3. अब कौन सा बचा? इन दोनों को ले लिया, इन दोनों को ले लिया. अब तीसरा वाला, इन दोनों को. इसमें क्या बनेगा? हालांकि जरूरत नहीं, बट 135 minus R minus of 555 plus R यही बनेगा divided by this डब्बा. कितना बन रहा है? 1080 by dabba. That means I am searching for a dabba such that it can completely divide 720, 360 and 1080. ये बात समझ में आ रही? अब तो हम सॉल्व कर सकते हैं, वेरिएबल खत्म हो गया. Now we are only interested in finding out the HCF of these three numbers, which incidentally happens to be 360 because ये 360 into 1 है, 360 into 2 है, ये 360 into 3 है. तो HCF मेरा क्या आ जाएगा? यही बनेगा ना? नहीं, इंटू 3 108. हाँ, 360 बनेगा. तो HCF 360, बस ये नंबर है. अब अगर आपको फीलिंग लेनी की रिमाइंडर क्या है जी बताओ? लो फीलिंग यहाँ डिवाइड करके देख लो. नहीं लेनी है, ठीक. सबका सेम आएगा, मेरा मतलब ये. R तो समझाने के लिए है. आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन तीनों का डिफरेंस ले लो. अब मैं सिर्फ आपको ये बोल देता, ये शॉर्टकट है, समझ में नहीं आता. हाँ, R जो मैंने R लिखा वो R आ जाएगा. अब ये R वार समझाने के लिए एग्जाम में नहीं लिखना तो मत लिखो. आपको क्या करना है? दोनों का डिफरेंस, अगला डिफरेंस, तीनों का डिफरेंस ले लो, उसका HCF निकालना है. ये डायरेक्ट मेथड है. बट वो क्यों है, क्या है, कहां से आया है, वो सारी कहानी है ये. नहीं, इसका HCF कैसे निकालोगे? नहीं 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 नहीं, नहीं. क्यों आए ना ना. हाँ, बट देन दैट इज नॉट ए क्वेश्चन. मतलब रिमाइंडर 0 का मतलब देयर इज नो रिमाइंडर, बट द क्वेश्चन इज सेइंग इट इज अ रिमाइंडर. नहीं, रिमाइंडर अगर 0 है तो हम उसको रिमाइंडर बोलते ही नहीं है. कहाँ बोलते हैं रिमाइंडर? 0 रिमाइंडर आने का मतलब नो रिमाइंडर, कंप्लीटली डिविजिबल. देयर इज नो रिमाइंडर. यहाँ रिमाइंडर है मतलब देयर हैज टू बी समथिंग, दैट इज व्हाई वी आर अज्यूमिंग. क्लियर है? ये बात समझ में आती है? यहाँ पे HCF
और एलसीएम खत्म होता है, लेकिन 2-3 चीजें जो इसमें नहीं है मैं वो कराने वाला हूँ अगले 10 मिनट में, शांति से बैठना। टू नंबर्स आर गिवन, उन दोनों का डिफरेंस होगा और उसके एक ही नंबर आएगा, सारे पॉसिबल फैक्टर्स उसका आंसर हो जाएगा गरिमा। तो हम रियलिस्टिकली कर नहीं पाएंगे अगर हम दो नंबर हैं और हमें रिमाइंडर चाहिए, तो उन दोनों का डिफरेंस होगा, दैट नंबर विल डिविजिबल बाय दैट पर्टिकुलर बॉक्स। सो देयर आर ऑल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज व्हिच कैन हैपन एंड देन वी विल हैव टू ट्राई विद ऑल द डिफरेंट पॉसिबिलिटीज। गरिमा समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे, मान लेते हैं 360 आ गया, तो जो मेरा आंसर होगा वो 360 के फैक्टर होने चाहिए, सारे फैक्टर्स 1 2 4 5 10, ये सारे फैक्टर्स लेने पड़ेंगे और उन फैक्टर्स से इस नंबर को डिवाइड कर, इन दोनों को डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, जिसमें सेम रिमाइंडर आ जाएगा वो मेरा आंसर हो जाएगा। ट्रायल एंड एरर का बेसिस है और कोई तरीका होगा नहीं इसमें, ठीक है? ओके, यहां तक क्लियर है? नो, बस थोड़ा सा और बचा। नहीं अभी ना HCF LCM तुम्हारे दिमाग में चल रहा है, मैं इसलिए कराना चाहता हूँ। HCF LCM का कॉन्सेप्ट है। 10 मिनट बचे हैं, देखो 10 मिनट में हो जाएगा, 10 में हो जाएगा। मतलब ऐसे पते की बात बता रहा हूँ, किसी को नहीं पता होगी। सुनो, नहीं 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 नहीं, मैं बताता हूँ। मान लेते हैं, चलो गोली की बात है तो मैं क्वेश्चन ही दे देता हूँ और फिर समझाता हूँ, तुम समझा देना मेरे को। देखो how many possible numbers exist whose HCF is 12 and the product of the number is 1728? ये क्वेश्चन है। देखो एक 144 पॉसिबिलिटीज हैं क्या? नंबर्स यानी कितने पेयर्स एग्जिस्ट करते हैं? 2 नंबर हैं। हाउ मेनी पेयर ऑफ नंबर्स एग्जिस्ट हुज HCF? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ 2 नंबर्स लिख देता हूं मैं, मतलब 2 नंबर का HCF 12 है। 2 नंबर हैं, एक पहला नंबर एक N1, दोनों का HCF 12 है। मान लो एक नंबर N1 है और एक N2 है, N1 और N2 है, इनका जो प्रोडक्ट है वो आपको 1728 दिया हुआ है और N1 और N2 का जो HCF है वो 12 दिया हुआ है। ऐसे कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ये क्वेश्चन है। HCF नहीं, 2 नंबर्स कोई भी, N1 N2, यहाँ पे 2 नंबर्स मतलब N1 N2। ये मेरा क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं है डिजाइन, लेकिन मान लेते हैं 2 नंबर्स N1 N2। नहीं, N1 into N2 is equal to 1728 and if you take H, मैं तो LCM पूछ नहीं रहा, मैं तो N1 N2 पूछ रहा हूँ बस।
ओके देखते हैं। कूलिंग नहीं, अभी तो आधा घंटा कह रहे हैं पढ़ाओ सर। पता नहीं ना। ओके नाउ लेट अस, एक मिनट ध्यान से सुनो, कुछ अनाउंसमेंट है क्या? उधर भी इधर भी है क्या? फंस रहा है क्या मामला? अच्छा 3 से 5 फिर मैं वहाँ सुबह ले लूंगा स्कूल में, ठीक है? स्कूल वाला तो फिर मैं ले लूंगा। कल तुम वहाँ चले जाना, मैं इनका इंटरव्यू कर लूंगा कल। मेरे तो यहाँ सेकंड क्लास है B3 कितने बजे? अच्छा तो मेरे को जाना पड़ेगा। तो इनको 3 से 4 कर दे, यही आएगी एक, यही आएगी जान ली। पता नहीं कल देखते हैं। So whenever a number is given, you can write that number in the form of HCF into alpha, and any number can be written as HCF into beta. Now, what is the characteristics of alpha and beta? Alpha and beta will be co-prime. Why? Because you see, HCF means something which is common. Now, when you have already taken out something common, whatever remains, there is nothing common. And when there are two numbers where there is nothing common, we call it as a co-prime. Making sense? No. In this case also, let me say my number 1 is 12 alpha and number 2 is 12 beta. ये कोई भी मतलब आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन, जहां पर भी ऐसा कुछ आएगा कि नंबर्स लेने हैं और हमें HCF दिया हुआ है, you can safely assume one of the number to be 12 HCF alpha, HCF beta. एग्जाम्पल के तौर पे 6 और 8 हमने लिया था, ये 2 into 3 है, ये 2 into 4 था, ये मेरा है HCF into 3 और ये नंबर था मेरा HCF into 4. Now you see 3 and 4 are co-prime. ठीक, अब इस क्वेश्चन में इन दोनों का प्रोडक्ट 1728 है, which is 12 into 12 into alpha beta. So 12 इसमें जाएगा 144 और 12 इसमें जाएगा 12. So 12 into 12 is alpha beta. यानी दो नंबरों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा होना चाहिए, और अल्फा बीटा का यानी 1 into 12 भी हो सकता था, 2 into 6 भी हो सकता था, 3 into 4 भी हो सकता था, और बाकी रिवर्स हो जाता. But I cannot assume 2 into 6 because it is not co-prime. So if I assume alpha to be 1, beta has to be 12. If I assume alpha to be 3, beta is 4. So my number, first number will be HCF into alpha. Number 1 क्या था? HCF alpha. तो ये बनेगा 12, और नंबर 2 क्या बनेगा? 12 into 12 144. दूसरा पेयर बनेगा N1 HCF into 3. HCF into 3 यानी 12 3 36, और ये HCF into 2 48. इन दोनों का LCM निकालोगे 12 आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे 1728 आएगा. उसी तरीके से इन दोनों का अगर HCF निकालोगे 12 आएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे 1728 आएगा. इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास कोई नंबर है और उनका जब सम करोगे, उसका अगर हम HCF निकाल लें, और दो नंबरों के सम का HCF और नंबर का HCF भी HCF ही निकाल देगा. छोड़ दो, कुछ नहीं बोला मैंने, भूल जाओ, यहां तक छोड़ दो, यहीं तक समझना है. समझ में आ गया? डन, नो प्रॉब्लम्स. लर्निंग क्या है? नंबर दिया हो, HCF दिया हो, assume the number to be HCF into alpha. अल्फा की मतलब A B जो भी मर्जी मानना है. The only consideration is that alpha and beta is data that you have assumed needs to be co-prime to each other. That is what you need to understand. नहीं बेटा, कोई A भी लिख दे तू, कोई दिक्कत नहीं. हाँ ठीक है. हाँ जी बेटा, ऑनलाइन एनी प्रॉब्लम एनीबॉडी? सर वो सक्सेसिव डिवीजन वाला टॉपिक किसमें था? अभी होना है बेटा, अभी ये बच्चे यहाँ नहीं पढ़ रहे हैं, बदमाश बच्चे हैं सारे, बोले छुट्टी करो. सक्सेसिव डिवीजन भी बचा है और इंटीग्रेटेड इन हाई स्पीड, दो चीजें बची हुई हैं, वो हम कल अगली क्लास में करेंगे, कल करेंगे. हाँ बस हो गई. ठीक है, वो हम कल, वो अगली क्लास में देख लेंगे. ठीक है, एनीबॉडी एनीथिंग एल्स? चलिए देन, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस इवनिंग.